কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। Good morning to all of you and pranam to all of you. It's my great pleasure and it's my privilege as an assistant curator of Sri Chaitanya Mahaprabhu Museum, Kolkata, to invite you all in this seminar on role of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this modern society on the occasion of second anniversary celebration ceremony of Sri Chaitanya Mahaprabhu Museum. This seminar is for our second foundation ceremony with the blessings of Sriman Mahaprabhu. Our museum has already entered its second inaugural celebration, and I am glad to inform you that our museum has creating a stir among many people, and we all of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Museum, Sri Chaitanya Mahaprabhu Museum, Kolkata, we promoting through our exhibition the life and works of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his associates, the teachings of Thakur Bhakti Vinod and Srila Prabhupada. And now I would like to request Sri Nilmadhav Das Brahmachari to start this session with a Mangalacharan. And before that, I will introduce to all of you with our guest speakers, and I would like to request to our speakers to have a seat on this platform. Our most respected speakers of the day are Dr. Sheikh Mukbul Islam, Associate Professor, Department of Bengali, St. Paul's Cathedral Mission College, and Director of Sri Jagannath Research Center. Please, sir, have a seat. Sri Rawal Pushpji, eminent journalist and poet, member of Hindi Academy, Government of West Bengal, editor of Vaicharik Hindi magazine. Sir, please have a seat. Tirunji Swami Bhakti Rakshak Rishikesh Maharaj, Superintendent of Book Department of Gauriya Mission. Maharaj ji, please have a seat. And our most revered Tirunji Swami Bhakti Rakshak Sripad Bhaktinishta Madhusudan Maharaj, Museum in charge of Sri Chaitanya Mahaprabhu Museum. Maharaj, please have a seat. And now, I would like to request Gaurasundar Das Brahmachari and Surabandhu Prabhu to felicitate our guest speakers. Now, before the start our session, I would like to request Nilmadhav Das Brahmachari to start the Mangalacharan. Namo Sistam Manumopi Shachiputrata Sadupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasam Praptajasya Patitaki Vaya Sri Gurum Tang Natosmi Devang Sada Paribhavagnam Avishtataham Tithaspadam Sri Viranjinutam Sharanam Vittatyaham Punatapalo Bhavabdipotam Bande Mahapurushate Charanarvindam Takta Sudusteja Suressutarajya Lakshmi Dharmishtvajya Vachasa Jadagadharannam
मायामृगं द्वैतिस्तन्नधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वैराग्यविद्या निजभक्तियोगो शिक्षार्थमेको पुरुषपुराणो श्रीकृष्णचैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिजस्तम् अहं प्रपद्ये कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यत् प्रादुष्कर्तुं कृष्णचैतन्यनाम आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गाढं गाढं लियतं चित्तो। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ প্রভুজি। আপনাদের জন্য একটি বিশেষ ঘোষণা আছে। আমাদের পরমানন্দ গুরুদেব শ্রীমৎ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছুক্ষণ বিলম্বে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন। তার আশীর্বাদ নিয়ে এবং তার অনুমতি নিয়ে আমরা এই সেশন শুরু করতে যাচ্ছি। Today's subject matter of the proceeding is very relevant in the modern scenario of pandemic, skepticism, socio-economic and also obviously socio-cultural turmoil thereof. In our minds, the cause and attitude are elaborated in traditional Indian wisdom as also the solution of this adversity. The foundation of Vaishnavism, Gaudiya Vaishnavism, which has been forwarded by Mahaprabhu and his associates, the experiences of Srila Prabhupada, Thakur Bhakti Vinod, their experiences of Ishwar Pranidhan, Vairagya, and the eternal bliss to everyone is much more appreciated and relevant in this recent context. We will be enlightened today by the rendition of the respected speakers of the seminar, and our most respected speakers of the day are first Triloki Swami Bhakti Rakshak Rishikesh Maharaj, Superintendent of Book Department, Gaudiya Mission. Dr. Sheikh Makbul Islam, Associate Professor, Department of Bengali, St. Paul's Cathedral Mission College, Director of Jagannath Research Center. Sri Raval Pushpji, eminent journalist and poet, member of Hindi Academy, Government of West Bengal, and editor of Vaishalik Hindi magazine. I welcome all the respected speakers, delegates, and the members of this seminar committee for their endeavors to make it successful session. Once again, I welcome with my humbleness and request to everyone to consider us if there are any shortfall to arranging this seminar. And now, we are going to our main session. I would request to very honorable Sripa Triloki Swami Bhaktinishta Rishikesh Maharaj to render his lecture and enlighten us on this subject. Vandeyam Sri Guru Syodapadakalam Sri Guru Vaishnavansho Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakha Nvitansh Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Vancha Kalpatarvishwa Kripa Sindhuve Vacho Patitanam Pavanabhyo Vishnabhyo Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavrindo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु म्यूजियम के द्वितीय वर्ष पूर्ति महोत्सव के उपलक्ष्य में आधुनिक समाज पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव इस विषय पर एक सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। समस्त गौड़ीय गुरुवर्गों का कृपाशीर्वाद शिरोधार्य करके मैं कुछ
वक्तव्य प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मंच पर उपस्थित डॉक्टर शेख मकबूल इस्लाम, एसोसिएट प्रोफेसर बंगाली डिपार्टमेंट एसटी पोल्स कैथेड्रल मिशन कॉलेज, उनको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं हमारे बीच में उपस्थित हैं एक और विशिष्ट अतिथि श्री रावेल पुष्प जी, जो बहुत ही विशिष्ट जर्नलिस्ट और पोइट हैं और हिंदी एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के वे मेंबर हैं एवं वैचारिक हिंदी पत्रिका है उसके एडिटर हैं। मैं उनको भी मिशन और अपनी तरफ से प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्रीपाद मधुसूदन महाराज एवं उपस्थित सभी भक्त वृंद को प्रणाम निवेदन करके आज का जो विषय वस्तु है उस पर संक्षिप्त वक्तव्य रखने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला तीनों में आज प्रवचन होगा। मुझे हिंदी बोलने का आदेश मिला है, इसलिए मैं जो है हिंदी में अपना वक्तव्य रखने का प्रयास कर रहा हूँ। विषय से हम लोग समझ रहे हैं आधुनिक समाज में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव या योगदान। चैतन्य महाप्रभु जिस समय अवतीर्ण हुए थे, उन्होंने जिस तरह से अपना आदर्श प्रस्तुत किया अपने जीवन चरित्र के द्वारा, वह केवल उस समय के लिए नहीं था। जो भी महापुरुष इस संसार में आते हैं, जो भी अवतार इस संसार में आते हैं, वो जो करके जाते हैं वो युगों युगों के लिए आदर्श स्थापित करके जाते हैं। कोई सा भी युग हो, उनकी वाणी हर युग में जो है सत्य होती है, उनका आचरण हर युग में सत्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज से लगभग 535 साल पूर्व में जो लीला की और आज भी उसका जो है वर्तमान समाज में हर आचरण, हर शिक्षा प्रासंगिक है। उनका जीवन चरित्र हर व्यक्ति के लिए आदर्श स्थलीय है। तो कैसे जो है चैतन्य महाप्रभु का अवदान इस वर्तमान समाज में सार्थक हो रहा है, उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन किया था। चैतन्य महाप्रभु जिस समय आए थे, उस समय अंधविश्वास की जंजीरों में समाज जकड़ा हुआ था। उस समय जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद, इन छोटी छोटी जंजीरों में, वर्णों में समाज जकड़ा हुआ था। वे केवल अपने बारे में सोचते थे, विश्व के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में सोचने का उनको समय नहीं था, क्योंकि वे लोग छोटी छोटी जंजीरों में, जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में, वर्ण के बंधन में, एक छोटे छोटे बंधनों में वो लोग फंसे हुए थे, छोटे छोटे एरिया में वो लोग फंसे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भूत होकर के आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन किया। उन्होंने जन्म से लेकर के उनका तिरुभाव तक, अप्रकट लीला तक उन्होंने दिखाया कि मनुष्य जीवन के लिए यदि हमको इस संसार में सफल व्यक्तित्व जीना है, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन जीना है, तो हमको आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता को भी लेके चलना पड़ेगा। समाज में एक ऐसी क्रांति लानी है जिसके द्वारा सारा समाज सुखी रह सके, भौतिक जीवन भी उसका संपन्न रहे, आध्यात्मिक जीवन भी उनका संपन्न रहे। चैतन्य महाप्रभु जन्म से ही हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने बताया कि एकमात्र
भगवान का नाम ही जो है इस सारे संसार को सुखी कर सकता है। उन्होंने जब उनका जन्म हुआ उस समय चंद्र ग्रहण के समय सभी लोग हरि बोल करते हुए गंगा में स्नान कर रहे थे। उसके बाद में वे जब शिशु लीला में प्रवेश किए, जब तक उनके कान में कोई हरि नाम नहीं सुना था तब तक उनका रोना बंद नहीं होता, वो रोते रहते थे। इस प्रकार जो है संपूर्ण जीवन उनका भगवत भक्तिमय था, आध्यात्मिकता उनके अंदर भरी हुई थी। किंतु जब वे समाज में थे, भौतिकता को भी लेकर चलते थे। अतिथि की सेवा करना हो, दीन दुखियों की सेवा करना हो, किसी को विद्या दान करना हो, वे अध्यापक भी थे। और उन्होंने गंगादास पंडित से जो ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने दूसरों को वितरण किया था। वे उस ज्ञान को बांटने के लिए बांग्लादेश में भी गए थे, बंग प्रदेश में भी गए थे। तो जब भी वे इस भौतिक जीवन यापन कर रहे थे, जब वो भक्ति के अंदर नहीं आए, आध्यात्मिकता के अंदर नहीं आए, उस समय भी समाज में जो कुछ एक मानव के लिए कर्तव्य वो पालन करते थे। अतिथियों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, विद्वानों का सम्मान करना। दिग्विजय पंडित कितने बड़े पंडित थे, विश्व विजय पंडित। उनको उन्होंने अपनी दीनता के द्वारा अचंभित कर दिया था कि इतने महान पंडित होकर के भी, इतने दीन होकर के हमसे बात कर रहे हैं, हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं। उनको बाद में जब पता लगा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े विद्वान होकर भी, जिन्होंने दिग्विजय पंडित जो विश्व विजय पंडित था उसको परास्त किया था, उनके सामने भी बहुत दीन होकर के बात कर रहे थे वो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मानवता के जितने भी आदर्श हैं अपने जीवन में उन्होंने दिखाए थे। दूसरी जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम लोग को शिक्षा मिलती है वह है साम्यवाद। चैतन्य महाप्रभु ने ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दिया था, धनी दरिद्र इसका भेदभाव खत्म कर दिया था। सारे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के वो हरि संकीर्तन में नचवाए थे। एक विश्व को, सारे विश्व को जो है एक छत्र के नीचे लाने का उन्होंने प्रयास किया था। क्योंकि वे बोलते थे कि हम लोग सब आत्मा हैं, हम लोग सब भगवान के दास हैं, यही हमारा परिचय है। ना हम ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न सन्यासी है, न ग्रस्त है, ये हमारा परिचय नहीं है। ना हम भारतवासी हैं, ना हम अमेरिकन है, ना हम पाकिस्तान के हैं, ना हम बांग्लादेश के, ये हमारा परिचय नहीं है। ना हम हिंदू है, ना हम मुस्लिम है, ना हम सिख है, ना हम ईसाई है। ये भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय क्या है? वी आर द सोल। हम जो है आत्मा है, और आत्मा जो है सबके अंदर समान है। इस आत्मा की भूमिका में हम लोग सब एक छत्र के नीचे आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है आत्मज्ञान देकर के सारे विश्व को एक छत्र के नीचे लाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके संकीर्तन में आकर के नृत्य करते थे। सबको उन्होंने भक्त बनाया, सबका जीवन उन्होंने बदला। इसलिए जो है गरीब से गरीब भक्त भी उनका भक्त था। श्रीधर ठाकुर कितने गरीब थे, एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। उनके घर से चांद सितारे उनको दिखाई देते थे, छत में बहुत सारे छेद थे, और जब बारिश होती थी एक कोना में बैठकर सारी रात भजन करते थे। बुद्धिमंत खान उसमें बहुत बड़े धनी थे। रूप सनातन उस समय हुसैन शाह राजा के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े जमींदार थे। प्रतापरुद्र राजा बहुत बड़े धनी थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बहुत गरीब थे। सबको उन्होंने साथ लेकर के अपना आंदोलन शुरू किया था। अपने आंदोलन में किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। चांदगाजी हरिदास ठाकुर यवन कुल में जन्म ग्रहण करने के बाद में भी उनका शिष्यत्व ग्रहण किए थे। इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु ने समाज में समानता लाने का प्रयास किया, भेदभाव को उन्होंने दूर कर दिया। वो आज के समाज में भी प्रासंगिक है। उसी शिक्षा पर आज का समाज भी चल रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जीवन में आचरण करता है वो सुखमय शांतिमय जीवन यापन कर सकता है। तीसरी शिक्षा हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन के मूल सूत्रधार। आज में जितने भी समाज में प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं भारतवर्ष में विशेष करके,
अहिंसात्मक आंदोलन होते हैं। यहाँ पर जो है आंदोलन हिंसा का रूप नहीं लेता है, पीसफुली सब लोग अपना बात रखते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले शुरू किया। जब नवद्वीप शहर के अंदर चांदका जी ने संकीर्तन करने पर बाधा डाल दिया, यहाँ पर कोई जो है खुलेआम संकीर्तन नहीं कर सकता है, करताल नहीं बजा सकता है, मृदंग नहीं बजा सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता है, उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिवाद किया था। उन्होंने बोला हर धर्म वाले व्यक्तियों को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। जो जिस धर्म में है सबको अपना अपना अधिकार है, हमारा अधिकार को आप लोग क्यों छीनेंगे? हमारे धर्म में जो हमको नियम नीति है हम पालन करेंगे। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने पूरे नवद्वीप शहर में जो है बुलवा दिया कि आज मैं जो है शाम को नगर संकीर्तन निकालूंगा, सब लोग आप लोग आइएगा। चैतन्य महाप्रभु के निवेदन पर जो है लाखों लोग नवद्वीप वासी आ गए। शाम का समय था, सभी लोग मसाल लेकर के आ गए ताकि प्रकाश रहे, अंधकार में कोई दुख मुक्ति ना हो। इसलिए जो है अब मशाल जो है ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। ये अंधकार है, अंधकार को हम लोग प्रकाश के द्वारा दूर करेंगे। और हरिनाम संकीर्तन करते हुए नवद्वीप नगर में जो है वो संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। चांदका जी के घर के सामने जब गए, चांदका जी समझा कि आज तो लगता है ये लोग सब लोग मुझ पर अटैक करेंगे, मुझ पर आक्रमण करेंगे। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनकी धारणा को बदला। हम अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, हम अपना बात आपके पास रखेंगे, आप हमारे पास में आइए, क्या आपको परेशानी है हम लोगों से, हम लोग को बताइए। उस समय चांदका जी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करते हैं, हम लोग अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करते हैं। हम तो आपको का कोई नुकसान नहीं करने जा रहे हैं, कोई आपका क्षति नहीं कर रहे हैं, तो क्यों आप लोग बाधा दे रहे हैं? आप भी जो है एक बार हरिनाम संकीर्तन करिए, आपके अंदर जो असुर बैठा हुआ है, जो ये सब करा रहा है, वो असुर नष्ट हो जाएगा। उस समय चांदका जी जो है हरिनाम संकीर्तन करने लगे उनके साथ में। एक बार जब हरि बोल बोला, एक बार जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस समय उनकी आंखों से जो है आंसुओं की धारा फूट पड़ी। इतना पावर है इस नाम के अंदर। मेरे अंदर जो असुर बैठा हुआ था वो आज नष्ट हो गया है। आपके दर्शन से, साधु का दर्शन का एक प्रभाव होता है, संतों का दर्शन का प्रभाव होता है, जन्मों जन्मों के हमारे पाप ताप कुसंस्कार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन का प्रभाव, चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रेमावतार हैं, उन्होंने प्रेम के द्वारा सबके हृदय को जीता है। एकमात्र उनके अंदर सबसे बड़ा पावरफुल अस्त्र था प्रेम। चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रेम पुरुषोत्तम, वो राधा रानी के अवतार हैं, राधा रानी के स्वरूप में आए हैं, कृष्ण भगवान के अवतार। और राधा भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसलिए राधा और कृष्ण मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हम लोग इस वर्तमान समय समझ में देखते हैं कि अभी जो हरिनामामृत व्याकरण साहित्य के अंदर चल रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हर धातु के अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, वो भगवान के नाम से है। यदि वहां से भगवान के नाम की शक्ति निकाल दें, वो शब्द जो है अपना भाव स्पष्ट नहीं कर पाएगा। उन्होंने हर नाम को, जब चैतन्य महाप्रभु गया धाम से आए थे वापस, जब वो भक्त बन गए थे, उस समय जो कुछ भी पढ़ा रहे थे पाठशाला में, उनके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा था वो भगवत भक्तिमय, और हर शब्द को वो दिखा रहे थे कि हर शब्द के पीछे भगवान छिपा हुआ है, भगवान की शक्ति छिपी हुई है। तब जो हम लोग एक दूसरे का भाव आदान प्रदान कर पा रहे हैं। पांचवा शिक्षा चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम लोग को प्राप्त होता है। चरित्र निर्माण और व्यक्ति विकासवाद के पुरोधा थे चैतन्य महाप्रभु। एक व्यक्ति का जीवन कितना चरित्रवान हो सकता है, एक व्यक्ति का जीवन कितना शुद्ध और पवित्र हो सकता है, कितना निर्मल हो सकता है, कितने वो पाप ताप अपराध से दूर जा सकता है, इसका आचरण करके चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। कितना उसका हृदय निर्मल हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि से कितना मुक्त हो सकता है, कितना मत्सरता से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अपने ऐसे भक्तों को तैयार किया। रूप सनातन जो
कुशिनसा राजा के वित्त मंत्री प्रधानमंत्री थे, उनका दर्शन करने के बाद में उनके प्रति आकृष्ट हुए और हमेशा हमेशा के लिए उनके भक्त बन गए। कहाँ चला गया धन का अहंकार, कहाँ चला गया पद का अहंकार। और वृंदावन में एक एक पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं, कुटिया भी नहीं बनाते थे और जो कुछ मिल जाता उनको अनायास में वो खाते थे। कहाँ चला गया भोग विलास। हमारे जीवन में जो भोग विलास करने की जो प्रवृत्ति है, भौतिकता है, वही तो हमारी बंधन का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। भोग दुख सृष्टि करता है, योग जो है वो जीवन में सुख और शांति लाता है। जितना हमारे जीवन में त्याग है हम लोग उतना सुखी हो सकते हैं, और जितना हमारे अंदर भोग है, जितना हमारे अंदर आसक्ति है किसी वस्तु के प्रति, वो हमारे दुख का कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भी अनुयायी बने, जो भी फॉलोवर बने, चैतन्य भक्त गणे वैराग्य प्रधान जहां देखी प्रीतवन गौर भगवान। वैराग्य जो है चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का एक प्रधान गुण है। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े जमींदार के लड़के थे। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होने से कहाँ चली गई भोग वासना, कहाँ चली गई नारी के प्रति आसक्ति। अप्सरा के समान सुंदर नारी से उनका शादी कराया था माता पिता ने, उसको कभी देखा ही नहीं। इतना जो है वैराग्य आ जाता है चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से। किंतु उन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा भी चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि जब तक अंदर से वैराग्य नहीं आता है, साधु का वेश लेने की जरूरत नहीं। संत का वेश, साधु का वेश बहुत पवित्र वेश होता है। जब तक अंदर से अंतरे निष्ठा करो, बाहरी लोगो व्यवहार। अंदर निष्ठा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि बाहर से जो है, जब तक अंतर आत्मा से पूर्ण वैराग्य आता है तब जाकर के हमको साधु का वेश लेना है, नहीं तो घर में रहकर के भजन करने में भला है। पहली बार में, दूसरी बार में जब आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी को बार बार घर भेज दिया, तुमको इस पथ में अभी आने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा अधिकार होगा तब आना। उनको भेज दिया कि तुम अभी गृहस्थ जीवन यापन करो। इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल गृहस्थ आश्रम में रहकर के लीला किया था। चैतन्य महाप्रभु भी ग्रस्त, सदग्रस्त बनकर दिखाए। उन्होंने भी विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया से शादी किया था। उसके बाद में 24 साल के बाद में उन्होंने संन्यास लीला किया। सन्यासियों की भी उन्होंने शिक्षा दिया कि संसार में सन्यासियों की भी जरूरत है और ग्रस्त व्यक्तियों की भी जरूरत है। जब हम ग्रस्त रहेंगे तो हमको सच्चा ग्रस्त बनना होगा। एक ग्रस्त के जो नियम है, सुबह उठ करके स्नान करना, आरती करना, मंत्र जप करना, भगवान का पूजा करना, तुलसी में जल देना, भगवान का कुछ मंत्र जप करना, कुछ ग्रंथ पाठ करना, ये जीवन में चैतन्य महाप्रभु आचरण करके दिखाए। और जब सन्यासी बने तो आदर्श सन्यासी, सन्यास के जितने नियम है सब पालन करते थे। जमीन पर सोते थे, कभी वैभवशाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार जो है चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण चैतन्य महाप्रभु ने किया। गौड़ीय वैष्णव साहित्य को समृद्ध किया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को वृंदावन में भेज दिया, तुम्हारा एक ही काम है, तुमको ग्रंथ लिखना है, तुमको साहित्य को समृद्ध करना है। षड गोस्वामी ने एक ही काम किया, वृंदावन में जाकर के केवल वो ग्रंथ लिखते थे। बहुत बड़े बड़े पंडित थे वो लोग, संस्कृत के पंडित थे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे। उनको एक ही काम दिया। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने लिखवाया, प्रेरित किया। इसलिए जो है गौड़ीय वैष्णव साहित्य जितना समृद्ध है, शायद दूसरा साहित्य इतना समृद्ध होगा उसमें डाउट है। हजारों हजारों ग्रंथ इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु का वर्तमान समाज के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। जो हम लोग पारमार्थिक रंगमंच भी देखते हैं, स्टेज पर जो नाटक होता है, ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी के वेश में सबसे पहले स्टेज पर नाटक किया था अपने भक्तों को लेकर के। वो भी बहुत बड़ी देन है चैतन्य महाप्रभु की, जिसका आज सारा विश्व जो है, चाहे वो भौतिकता में हो चाहे आध्यात्मिकता हो, उनके उस स्वरूप को सब लोग लेकर के एक नाटक जो है वो स्टेज पर होता है। आजकल सामूहिक नृत्य जो चैतन्य महाप्रभु मृदंग खोल करता लेकर के सामूहिक नृत्य करते थे, इस सामूहिक नृत्य भी विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के योगदान है। चैतन्य महाप्रभु ने धर्म, जाति, वर्ण आदि से मुक्त होकर के विश्व भारतीत्व का स्थापना किया था। नारी शक्ति का सशक्तिकरण चैतन्य महाप्रभु ने किया है। उन्होंने जो है नारियों को भी उत्साह दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने नारियों को जो उत्साह दिया था, श्री अद्वैत आचार्य की गृहिणी सीता देवी, नित्यानंद
प्रभु की जननी श्री पद्मावती देवी, सची माता, शिवास की पत्नी श्री मालिनी देवी, श्री राघव पंडित की बहन दमयंती, श्री सार्वभौम की गृहिणी, आचार्य रत्न चंद्रशेखर की पत्नी, आचार्य श्री जानवा वसुधा, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, शिवानंद सेन की पत्नी, नंदिनी जंगली, सिखी माइती की बहन विदुषी, श्री माधवी माता आदि अनेक वैष्णवी शक्तियों ने यहाँ पर समाज में जो है एक आदर्श चरित्र दिखाया कि एक नारी भी जो है अध्यात्म का अधिकार प्राप्त कर सकती है। एक नारी भी जो है जिसको पहले जो है धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं था, उसको अछूता समझा जाता था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह वैष्णव धर्म जो है सबके लिए खोल दिया। सनातन धर्म में सबका अधिकार है। इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श है वो समाज के लिए वर्तमान युग में भी 100% फिट बैठता है। 100% उनका प्रत्येक शिक्षा को यदि हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और उस पर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। जो युवा समाज को है उसको भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया था। उनके ज्यादातर फॉलोअर्स युवा थे, युग लोग उनसे आकृष्ट होते थे। इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु ने युवा समाज में भी एक चेतना जागरण किया था कि जो है जो विश्व की व समाज की जो शक्ति है वो युवा शक्ति है। युवा शक्ति में यदि थोड़े आध्यात्मिक संस्कार, थोड़े धर्म के संस्कार आएंगे तो उनका भौतिक जीवन सुखी होता है, वो भौतिक जीवन में उन्नति कर सकता है। आध्यात्मिकता के बिना भौतिक उन्नति अंधी है, पंगु है, उसमें उनको विफल होना ही है। वो एक दिन उसके दुख का कारण बनेगी ही बनेगी। इसलिए भौतिकता जो है आध्यात्मिक द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, तब जो है मानव जीवन सफल हो सकता है। तभी समय समाप्त हो रहा है। मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। Thanks to Rishikesh Maharaj. He delivered his lecture in an extraordinary manner and he brought up some very important points in his lecture. And Maharaj, while I am listening your lecture, few words came in my mind from the Hindu scripture Bhagavad Gita, which is divinity or bhakti is in everyone, like the sunlight reflects on the diamonds and the charcoal. So, O Arjun, be the diamond. আমার গীতা থেকে এই শ্লোকটি যেটা আমার মনের মধ্যে যেটা এলো মহারাজের লেকচার শুনে, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে ভক্তি এবং যে সরলতা বা সাধুত্ব সেটি আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। যেমন সূর্য তার কিরণ হীরের উপরেও আপতিত করে এবং কাঠকয়লার উপরেও আপতিত করে। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি হীরে হয়ে ওঠো। এবং তিনি যে relevance of Chaitanya Mahaprabhu on socio-cultural aspects, যে অ্যাসপেক্টস আছে তার উপর যে চৈতন্যদেবের যে জীবন আদর্শের তাৎপর্য তা মহারাজ খুব সুন্দর করে তার লেকচারের মাধ্যমে তুলে ধরলেন। We need to remember these words. Thank you Maharaj, thank you again. Now I would like to request our guest lecturer Dr. Sheikh Makbul Islam, Associate Professor of Bengali Department, St. Paul's Cathedral Mission College and Director of Jagannath Research Center, to render his valuable lecture and enlighten us. Please sir. Hare Krishna. At the outset, I would like to offer due salutation to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, because we are going to celebrate the second anniversary of Sri Chaitanya Museum, a very unique effort taken in Kolkata. Today is a very auspicious day because we are going to talk on the relevance of Sri Chaitanya Mahaprabhu in our tough time that we are undergoing. Before that, I would like to offer due salutation to respected Paul the Maharaj,
all the brahmacharis, all the devotees and well-wishers of Gaudiya Modern Vision, and all of them who believe in the philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Actually, আমরা একটু আগে মহারাজের কাছে শুনেছি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবদানের কথা। সমাজের নানা ক্ষেত্রে আমরা তাকে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছি। তবে আমি আজকে একটি দিশা খুব পরিষ্কার নিজের জন্য বুঝে নিতে চাই। সেটি হল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুত্ব, তার শিক্ষা, তার দর্শন এবং তার ভাবনা চিন্তাকে নিজের ব্যক্তিত্বের চরিত্রে সাঙ্গীকরণ করার যে প্রক্রিয়া, এবং এই দিশায় এই কর্মকাণ্ডে কর্মযজ্ঞে গৌড়ীয় মিশনের যে ভূমিকা, এই সবটা নিয়ে আমার কাছে চৈতন্য মহাপ্রভু। আমরা যদি শাস্ত্র বিচার করি তাহলে তিনি যিনি কুরুক্ষেত্রে রথ চালনা করেছিলেন, তিনি যিনি নবদ্বীপে নীলাচলে খোল কর্তাল কীর্তন করেছিলেন। একটা সময় তাকে আমরা দেখেছি তত্র বেত্রৈক পাওনায়, এক হাতে রথের চাবুক আর এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, তত্র বেত্র এক পাওনায়। এবারে তিনি এসেছেন নাম বিলোবেন বলে, হরিনাম দেবেন বলে, সংকীর্তন যোগ্য করবেন বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সম্পূর্ণ লীলা নিয়ে লেখা হয়েছিল শ্রীমদ্ ভাগবত মহাগ্রন্থ। তিনি তাকে নিয়ে লিখেছিলেন বৃন্দাবন দাস, শ্রী চৈতন্য ভাগবত। মহাপ্রভুর ভিতরে, তার ভিতর দিয়ে ভাগবতের লীলা চলছে। এখন মূল প্রশ্নটি হলো এই যে আমরা আধুনিক কালে মহাপ্রভুকে নিয়ে অনেক গবেষণা করছি, অনেক পড়াশোনা, লেখালেখি। কারণ আধুনিক কালের গবেষকদের কাছে মহাপ্রভু একটা ডিসকোর্স উইদিন কোট, ইজ এ রিসার্চ ডিসকোর্স। কিন্তু মহাপ্রভু সামাজিক মানুষ, তাকে আমরা গবেষণার ভিতর দিয়ে নানান রকম বুঝতে পারি। কিন্তু যে মহাপ্রভু স্বয়ং চরম এবং পরম তত্ত্ব, সেই পরম ভাবটিকে জানার জন্য রিসার্চের ভিতর দিয়ে কিছু পাওয়া যাবে বলে অন্তত আমার প্রত্যয় হয় না। গৌড়ীয় মিশনে দাঁড়িয়ে আমরা যে মহাপ্রভুকে বুঝে নেব, তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব। মহাপ্রভুর জীবনে যারা লিখেছেন, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস, কবিরাজ, তারা প্রত্যেকে জানিয়েছেন যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদেরকে প্রেম দেবেন বলে। এই একটি শব্দ, এই একটি ভাব, যা গোটা পৃথিবীকে আবদ্ধ করে রেখেছে। সারা পৃথিবীর যত ধর্ম আছে তার মূলীভূত নির্যাস এই প্রেম, এই আত্মীয়তা, এই একাত্মতা, এবং এই প্রেম যেখানে রয়েছে সেখানেই এসেছে সাম্য প্রাণতা। অনেকে মহাপ্রভু সম্পর্কে অনেক কিছু বলেন, অনেকে বলেছেন সাম্যবাদী। আমি একটু শব্দটাকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করে আমার মনে হয় সাম্য প্রাণতা শব্দটা সাম্যবাদীর থেকে অনেক বড় শব্দ। বাদ্য তত্ত্ব, ইজমটাকে যিনি ইজম মানেন,
তিনি যে দর্শনটাকে অনুসরণ করেন এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা অনেক ইজম মানা জানা মানুষকে দেখেছি, কিন্তু those who subscribe to a particular ism necessarily doesn't mean that he is the follower or practitioner of the ism. এখানে আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে হবে। তিনি সাম্য প্রাণ, প্রাণ এই শব্দটা আমরা সেখানে পাই। কোনো তত্ত্ব পরের কথা। এই সাম্য প্রাণতা তিনি সমাজকে শিখিয়েছিলেন এবং থ্রু প্র্যাকটিস আপনি আচরি ধর্ম, ধর্মটাকে তো আচরণের মধ্যে থাকতে হবে। আমরা গোটা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে, আমি কোনো নামধাম বলছি না, আপনাদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। পৃথিবীর চারপাশে যা কর্মকাণ্ড ঘটছে ধর্মের নামে সারা বিশ্ব জুড়ে, সেটা কোথাও প্রমাণ করে না যে ধর্মটাকে বাস্তবে কেউ পালন করছে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় লিখেছে, আমার খুব খুব মাঝে মাঝে নিজের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি। আমার খুব প্রশ্ন ছিল যে ধর্মের মধ্যে কেন গ্লানি হবে? পৃথিবীর সব আশা ভরসা যখন শেষ হয়ে যায় তখন তো একমাত্র ধর্মই আমাদেরকে টেনে তোলে। ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মবোধ, ঈশ্বর। তো সেই ধর্মের মধ্যে যদি গ্লানি হয়ে যায়, ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি, তাহলে আর কি হবে? একটা সময় আমার জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু যত আজকের পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি, এই বিশেষ করে গত 10 দিনের কাগজে আপনারা যা দেখছেন, তাতে করে একটা কথা মনে হয় যে আধুনিক কালে অধর্মকে ধর্মের নামে চালানোর যে অহং, এই অহং সভ্যতার মূলীভূত সংকট। চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে যে পন্থাটি দেখিয়েছিলেন, তিনি আসলে বলেছিলেন তুমি আত্মা। কথা হয়েছে, মহারাজ বলেছেন তুমি আত্মা এবং তোমার স্বরূপ হচ্ছে ঈশ্বরের দাস। আমরা যদি ঈশ্বরের দাস, আমরা অনেকে দাস শব্দটা শুনি খুব আমাদের মধ্যে খুব ইগোতে লাগে আর কি, যা করি বাবা। কিন্তু আমি যেটুকু পৃথিবীকে দেখেছি, যে ভগবানের দাসত্ব না করে আপনাদের জীবনের, আপনাদের সঙ্গে আমি শুধু অভিজ্ঞতা ভাগ করছি, যে ভগবানের দাসত্ব না করেছে তাকে জীবনের প্রত্যেকটা জায়গায় দাসত্ব করতে হচ্ছে। কিন্তু যে ভগবানের দাস, আমি দেখেছি তার প্রাণে প্রচুর শান্তি। আমি একবার যে কোনো কারণে বাংলাদেশে শ্রী জগন্নাথের গবেষণার জন্য গিয়ে এক বৈষ্ণব বাড়িতে ছিলাম। সকালবেলা একটা ফোন এসেছে, তো তিনি ফোনে কথা হচ্ছে, তো ফোনের টেক্সট এইরকম যে আরে আপনি তো মালিক লোক, আপনার সকালবেলা মন মেজাজ আলাদা, আপনি 9টার আগে ঘুম থেকে উঠবেন কেন? আপনার কাউকে কথা বললে আপনার গলার স্বর, ভঙ্গি, দাপট সব অন্যরকম। আর আমরা ভগবানের চাকর, আমরা ভোর 3:40 উঠি, ভগবানের সেবা টেবা করে মানুষের দুয়ারে হাত পেতে দীনহীনের মতো মানুষের কাছে ঈশ্বরের কথা বলি। দীনতা, একটু আগে মহারাজ বলেছেন যে আমাদের জীবনের এই যে দীনতা, এই যে দৈন্য ভাব, এই যে সাবমিসিভনেস, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না এলে এটা আসা খুব মুশকিল। কুরুক্ষেত্র, একই কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন। একই কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ভগবানের প্রদত্ত জ্ঞান দুর্যোধন পাননি, অর্জুন পেয়েছেন। কেন? এর প্রধান কারণ হচ্ছে ইগো, এর প্রধান কারণ হচ্ছে অহংকার। এই যে আত্মবোধ, আমি কর্তা, এই বোধ আমাদেরকে পরিচালিত করছে, ব্যক্তিকে, পরিবারকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে। পরিণাম যা এসেছে অনার সৃষ্টি। একটি শব্দ আমি বলবো যে গোটা বিশ্বজুড়ে যা হচ্ছে ধর্মের নামে, বহু ক্ষেত্রে অনার সৃষ্টি হচ্ছে।
কিন্তু হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ যে দেশে মহাপ্রভু আছে, যে দেশে বৈষ্ণব দর্শন আছে, যে দেশে প্রেম আছে, এই প্রেম মানুষকে উদ্ধার করবে। একটু আগে সমন্বয়ের কথা হয়েছিল, আমরা কিছুদিন আগে খুব সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা এইসব নিয়ে খুব কথাবার্তা বলেছি, নানান পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি, সেসব আর এখানে স্মরণীয় নয়, আপনারা সবাই জানেন। সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, টলারেন্স। সহিষ্ণুতা শব্দটা বাংলা সাহিত্যে কারা প্রথম ব্যবহার করেছিল জানেন? স্বামী না, চৈতন্য মহাপ্রভু। তেনাদপি শুনিছেন তররিব সহিষ্ণুনা। যে শব্দটা নিয়ে আজকে আমরা এত বড় বড় থিওরিটিক্যাল ফ্রেম তৈরি করছি, এই শব্দটি চৈতন্য মহাপ্রভুর দান। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমরা যে কোনো কারণে হোক বৈষ্ণব ধর্মটাকে না একটা খুব ছোট জায়গার মধ্যে বেঁধে দিয়েছি, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম, বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণব দর্শন একটা বিরাট দর্শন, একটা বিরাট দর্শন। আপনি দাস্যভাব আপনি ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে পাবেন। শেষকালে যারা বাইবেল জানেন তারা দেখবেন শেষ মুহূর্তে যীশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় বলছে, ফাদার, ইনটু ইউর হ্যান্ড আই লে মাই স্পিরিট। হে পিতা, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম। কার কথা? কোন দর্শন? বৈষ্ণবের দর্শন। আমরা যখন নামাজ পড়ি, এই নামাজের সময় আমরা যে কথা বলি, যে আমি এক মুখ হয়ে তোমার দিকে মুখ করে আমি মাথা নত করছি, কাবাতি শরীফতে আল্লাহ আকবার, ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ। কার বন্দনা? কোন পথ? বৈষ্ণবতার যে গুণ, চৈতন্য মহাপ্রভুর যে দর্শন, সেই দর্শনের যদি কোর এবং বেসিক কোডগুলো আমরা দেখি, তাহলে অনেকের মধ্যে বৈষ্ণবতা আছে। আজকে আমাদেরকে এই পথে যেতে হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম আছে, আমরা কোনোদিন বলিনি, আমরা কোনোদিন সেটাকে খুলে দেখিনি। যারা ইতিহাসের ছাত্র, সংস্কৃতির ছাত্র, তারা দেখবেন যে গোটা ভারতবর্ষের যা কিছু সাংস্কৃতিক বিকাশ, সঙ্গীত থেকে শুরু করে, চিত্র থেকে শুরু করে, স্থাপত্য থেকে শুরু করে, অর্ধেকের বেশি বৈষ্ণবীয় ভাবনা, অর্ধেকের বেশি বৈষ্ণবীয় ভাবনা। এমনকি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের যে অংশটুকু গাওয়া হয় না, দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্করধ্বনি বাজে, সংকটে বরাভয় দাতা, কাকে স্মরণ করেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রের ছবি, মাধব পাণ্ডবশ্চৈব দিব্য শঙ্খ প্রদত্ত, দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্করধ্বনি বাজে। আমরা চৈতন্য দেবকে নিয়ে আজকে ভাবনা চিন্তা করছি। আমি যে কথাটা বলার জন্য একটু বলে শেষ করব। তিনি গীতা বলছে যে আমার ভাব না জেনে মানুষ আমাকে মানুষ বলে জানে। তিনি মানুষ রূপে এসেছিলেন কোনো, কিন্তু তিনি কি রূপে আসবেন এটা সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর করছে। হ্যাঁ, আত্মানম সৃজামি অহম। তিনি বলছেন আমি নিজেই নিজেকে সৃজন করি। আত্মানম তদাত্মানম সৃজামি অহম। তিনি অবতীর্ণ হয়ে আসেন। নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য নিমায়। এই তত্ত্ব আপনাদেরকে নতুন করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই, কিন্তু কলিকালে যুগ ধর্ম নামের প্রচার তথি লাগি পীত বর্ণ শ্রী চৈতন্যবতার। আমাদের কথা হচ্ছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইন মডার্ন কনটেক্সট, কলি যুগে যুগ ধর্ম। এই যুগে মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে নাম, নাম এবং নাম, নাম, নাম এবং নাম। এই নাম আমাদেরকে শুদ্ধ করে, আমাদের আত্মাকে, আমাদের সঙ্গে আমাদের ঈশ্বর বোধকে, আমাদের দাস্য বোধকে পোক্ত করে, পাকা করে। তো কলিযুগের যুগ ধর্ম হচ্ছে নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর। নাম করাই ধর্ম। আমরা যত নাম থেকে দূরে,
আমরা একটা সামাজিক জীবন যাপন করি, আমাদের একটা আধ্যাত্মিক জীবন আছে। দেখুন, সাম্য তৈরি হয়েছে সমাজে, এই সমস্ত তৈরি হয়েছে। আপনারা যারা কমার্সের মানুষজন তারা দুটো শব্দ ব্যবহার করেন, একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট। বাই প্রোডাক্ট তো সমাজে যা কিছু হয়েছে এটা কিন্তু শ্রী চৈতন্যদেবের যে মূল অবদান, এই মূল অবদান থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু তার মূল অবদানটি হলো আমাদের চেতনার জন্য, আমাদের চৈতন্যের গভীর কেন্দ্রে যে বার্তাটি তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সর্বভূতে কৃপালুতা প্রভুর চরিত। সর্বভূতে কৃপালুতা, এই শব্দ মারাত্মক শব্দ। আজকের দিনে খবরের কাগজ খুললে আমাদের হাতে রক্ত লাগে, পৃথিবীর কোথাও কৃপা নেই। এই কৃপালুতা আজকে যদি দরকার, আমরা যে যে পন্থাতে থাকি না কেন, যে যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে যে ধর্ম ভাবনায় থাকি না কেন, কিন্তু জীবনকে শুদ্ধ এবং সুস্থিত করতে গেলে কতগুলি মৌলিক সংবিধান মেনে চলতে হয়। এই মৌলিক সংবিধানগুলি বৈষ্ণব ধর্মের বলে। যে কোনো কারণে হোক, আমি সুখী বাড়ির থেকে উঠে এসেছি, আমি দেখি যে আমার শাস্ত্রের সঙ্গে যে মূল দর্শন, এই দর্শনের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শন সব থেকে কাছাকাছি। যার জন্য দেখবেন পশ্চিম বাংলায়, বিশেষ করে বাংলার সংস্কৃতিতে যত সম্প্রীতির সাহিত্য তৈরি হয়েছে, ম্যাক্সিমাম বৈষ্ণব এবং সুফিকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। এটা অন্য জায়গায় খুব বেশি ঘটেনি। আপনি লালন ফকিরকে দেখুন, আপনি হাসন রাজাকে দেখুন, আপনি ফুলবাস উদ্দিনকে দেখুন। বাংলায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। হতে পারে যে কোনো কারণ হোক, ধর্মের সব বার্তা আমরা সবাই সবাইকে পৌঁছে দিতে পারিনি, এটার কোথাও আমাদের একটা হয়তো একটা সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমরা সেই মানুষের দেখা পাই যাদেরকে দেখলে ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ফিরে আসে, আমাদের বোধ ফিরে আসে। এই যুগে দাঁড়িয়ে আমরা যখন মহারাজদের দেখি, এই যুগে দাঁড়িয়ে আমরা যখন প্রকৃত ভক্তকে দেখি, তখন কিন্তু আমাদের মনে হয় এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী অধর্মের হাতে চলে যাবে, এটা সম্ভব না। মহাপ্রভু আমাদের সেই প্রত্যয় জাগিয়েছেন। মহাপ্রভুর যে মূল ভাবনাগুলো তিনি কি শেখালেন, আধ্যাত্মিক দর্শন, আমরা দেখেছি রায় রামানন্দকে, বাসুদেব সার্বভৌমকে, সনাতন গোস্বামীকে, রূপ গোস্বামীকে, বল্লভ ভট্টকে তিনি তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছেন। মহারাজ উল্লেখ করেছেন বই লিখেন, কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান তিনি তাদেরকে দিয়েছেন তার উপরে নির্ভর করে বিরাট বিরাট গ্রন্থ লেখা হয়েছে। বৈষ্ণব দর্শনের এই যে বিরাট বৈষ্ণব লিটারেচার, এই বৈষ্ণব লিটারেচার কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর দান। আমরা যখন পড়ি রূপ সনাতনের গ্রন্থ, আমরা যখন উজ্জ্বল নীলমণি পড়ি, আমরা যখন হরিভক্তি বিলাস পড়ি, তখন আমরা যে সত্যকে দেখতে পাই, সেই সত্যের প্রাণ পুরুষ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। সাধ্য সাধন তত্ত্ব, এটা বলে আমি শেষ করব। সাধ্য সাধন তত্ত্ব, তিনি রাধার সত্তা নিয়ে জন্মেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তিনি পরম আলটিমেট ডেস্টিনেশন, দি আলটিমেট গডহেড, এবং তাকে পাওয়ার যে পন্থা, সাধনার যে পথ, সেই পথ রাধা। রাধা ভাব প্রতিষ্ঠা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিরাট বড় অবদান। আপনি দেখবেন চৈতন্য মহাপ্রভুর আগে উড়িষ্যা রাধা ভাব পরিচিত, অসম রাধা ভাব পরিচিত, শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের এতে রাধা ভাব ছিল। তাদের লজিক হচ্ছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণম ব্রজ। সুতরাং কৃষ্ণ একাই, রাধা নেই। কিন্তু এই দুই দিকে রাধা না থাকা যে ভূখণ্ড, তার মাঝখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠা করলেন রাধাভাব। এবং কোথায় গিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন? পুরীতে, নীলাচলে। এবং রাধাভাব মহাভাব, কানাই খুন্টিয়ার মহাভাব প্রকাশ উড়িয়া ভাষায় লেখা। কানাই খুন্টিয়া লিখেছেন। শ্রী শেষ করব আমি জগন হরিদাসের কথা বলে।
জগন হরিদাস শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন ইত্যাদি ছিলেন, এই কথা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু তত্ত্বস্বরূপ শ্রীমন মহাপ্রভুর তত্ত্বস্বরূপ জেনেছিলেন জগন হরিদাস। আমরা ওই শেষ মুহূর্তটা কল্পনা করি যে জগন হরিদাস মহাপ্রভুর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, আপনার চোখের দিকে চেয়ে আপনার হাঁটুতে মাথা রেখে আমি শরীর ত্যাগ করি। অন্তকালে চ মামেব স্বরন্মুক্তাকালে বরমিয় প্রয়াতি সমদ্ভাবম জাতি নাস্তি অত্র সংসার। এই ইচ্ছা ভগবান এবং ভক্তের এই যে লীলা, এই জগন হরিদাস তিনি আমাদের আজকের যে বুনিয়াদ, সকলকে নিয়ে চলা, সকল তত্ত্বের সার কথা যে এক, এই কথাটি জগন হরিদাস আমাদের কাছে উচ্চারণ করেছে। এক সত্য নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয় পরিপূর্ণ কইরা বৈশেষ সকল, এইরকম একটি এক সত্য নিত্য বস্তু। তো যিনি এক সত্য নিত্য বস্তু কলেবর ধারণ করে এসেছিলেন, মানব শরীর ধারণ করে এসেছিলেন, অবজানন্তি মানুষগুলো অবজানন্তি মাম পরম ভাব পরম ভাব অজানন। আমরা যাকে এতদিন মানুষ হিসেবে চলেছি, আমরা যাকে এই মানুষ করে চলেছি, আমরা যেন এই আজকের এই শরীরে আমরা যেন এইটুকু বিশ্বাস করি, পরমাপের মানুষ ছিলেন, এইটুকুই শেষ। পরমাপের মানুষ ছিলেন, মানুষের এইটুকুই শেষ, অনেক বড়। তিনি মানুষের থেকে অনেক বড়, ঈশ্বর বড় ছিলেন, ঈশ্বর বড় ছিলেন। Thank you very much, Professor Makbul Islam. Professor Makbul Islam presented an important point in a very captivating way through his lecture. Professor Islam beautifully tells us how much relevant the messages of Mahaprabhu in this modern society. And Mahaprabhu কি বলতে চেয়েছিলেন, যে মূল কথা, তার যে শিক্ষা, সেটি অত্যন্ত সুচারুভাবে তিনি আমাদের কাছে, আমাদের ভাষায়, বাংলা ভাষায় খুব সুন্দরভাবে তিনি আমাদের কাছে উপস্থাপন করলেন। যে আমাদের এই যুগে মহাপ্রভুর যে মূল কথা, বি মোর হাম্বল দ্যান আ স্ট্র গ্রাস অ্যান্ড বি মোর টলারেন্ট দ্যান আ ট্রি, এবং তার কথা যে সকল তত্ত্ব এক, শেষে যখন বললেন যে সবের সার এক, ওয়ান ইনফিনাইট বিয়ন্ড অফ থটস বিয়ন্ড অফ কোয়ালিটি আই বো ডাউন দি, এই যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব উনি অত্যন্ত সুচারুভাবে বললেন। এবং সকল পথ দিয়ে যে সেই পরম সত্যকে জানা যায়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছানো যায়, এই কথা উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বললেন। এবং স্যারের লেকচার শুনতে শুনতে আমার মনে শিবমহিম স্তোত্র থেকে স্তোত্র মাথায় এলো। সেটি হচ্ছে রুচিনাং বৈচিত্রাং যথা ত্রিজা কুটিল নানা পাথ জুষান ঋণামেকা গামস্তমাসি পায়সা পার্ণব ইবা। অর্থাৎ as the different streams coming from the different sources and all mingle their water into the sea, একই নদী যখন বিভিন্ন শাখা প্রশাখা যুক্ত হয়ে আসে, ভাগ হয়ে আসে, তারা একসাথে একই সমুদ্রে মিলিত হয়ে যায়। এই পরম যে কথাটি, এই কথাটি আজকের এই যে অচলায়তন, আজকে যে অশান্তি চারিদিকে, যেটি স্যার তার বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরলেন, তাতে আমাদের খুব বেশি করে এই কথাগুলোকে পরিধানযোগ্য আমাদের কাছে, এগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে মহাপ্রভুর যে সাম্য প্রাণ শব্দটি, এই শব্দটি প্রথম আমার কানে এলো, সেটি আমি স্বীকার করি এবং অত্যন্ত সুন্দর, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। Now, I would like to request Sri Rahul Pushpji. He is an eminent journalist and poet, member of Hindi Academy, Government of West Bengal, editor of Vaicharik Hindi magazine. Please, sir, enlighten us, and I would like to request to render his lecture. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। ये चैतन्य मंत्र मैं आने के पूर्व स्मरण कर रहा था। सबसे पहले मैं आज इस लघु परिसर में सभी पवित्र आत्माओं को नमन करता हूं। ये जो मंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु
द्वारा उच्चारित मंत्र है। और मंत्र की शक्ति जो है, आप लोगों में से संभवतः कुछ लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली ने एक पुस्तक लिखी थी, मंत्र रहस्य। तो मंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है, अगर शुद्ध मन से, पवित्र मन से इसका बार बार पाठ किया जाए तो हिमालय जैसा पर्वत भी भर भरा कर ठहर सकता है। इतनी शक्ति होती है एक मंत्र के अंदर। और जिस समय चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इस धराधाम पर होता है, वो समय हमारे देश पर मुगल शासन की शुरुआत हो चुकी होती है और दिल्ली के तख्त पर बाबर का शासन है। जब धर्म की हानि होती है, उस समय धराधाम के विभिन्न अंचलों में सिर्फ एक ही महापुरुष नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए अलग अलग महापुरुष उस एक ही कालखंड में जन्म लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही 17 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी का भी जन्म होता है। उनका जन्म 17 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का 1486 में होता है और उनका 1469 में होता है। तो ये एक ही कालखंड है। एक ही कालखंड में जो अवस्थाएं थी, वो एक ही तरह से मनुष्य संत्रस्त था। आपस में धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, विभेद था, ऊंच नीच का भेद था, सबसे ज्यादा जाति का भेद था। जो नीची जाति के लोग थे उनको लोग तिरस्कार की तरह देखते थे, तिरस्कृत करते थे, छोटी जाति का मानते थे। उनका जूठा खाना तो दूर, उनको पास तक भी आने नहीं देते थे। इस तरह की अवस्थाएं थी। तो उसका विरोध, अब विरोध भी कैसा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, क्योंकि ये जो हुए ये भक्त कवि हुए हैं, ये सारे के सारे भक्त हैं। अभी जब हम लोग वैष्णव की बात सुन रहे थे, उसी समय नरसिंह मेहता भी होते हैं गुजरात में। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे, जिसके मुरीद महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना में इसको शामिल करते थे बराबर, नरसिंह मेहता कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे। तो वैष्णव मत जो है, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की शुरुआत करते हैं वहां से। और इससे पहले हम जानते हैं, एक आध दोहा हमने सुना है कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, आपने अनूप जलोटा का भजन सुना होगा कई बार। तो कृष्ण के मन में, बाल कृष्ण के मन में ये प्रश्न है, बाल सुलभ प्रश्न, माता से कहते हैं वो कि राधा तो बड़ी गोरी है और मैं काला हूं, मैं श्याम वर्ण का हूं। तो इस जो शंका का उसके अंदर जो ये भाव था, वो भाव वो दूर होता है चैतन्य महाप्रभु में आकर। और चैतन्य महाप्रभु आप जानते होंगे कि बिल्कुल गौर वर्ण के थे, बिल्कुल गोरे थे। गोरे थे इसलिए हम उन्हें गौरंग भी कहते हैं, बहुत गोरे थे। उनको जैसे कहते तेरा चांद सा मुखड़ा, तो उनका चांद सा मुखड़ा था। इसलिए जो मायापुर में मंदिर है, वहां वो चंद्रोदय मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चांद जैसा मुख था। तो चंद्रोदय भगवान भी हम इन्हें कहते हैं, निमाई भी कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है वो नीम वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि नीम वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था, तो निमाई भी हम कहते हैं। तो जब कोई विलक्षण व्यक्ति का जन्म होता है तो घटनाएं भी विलक्षण होती हैं। आमतौर पर किसी शिशु का जन्म जो होता है 9 महीने में होता है, लेकिन चैतन्य का जब जन्म होता है तो वो 9 महीने में नहीं होता है। वो पूर्ण परिपक्व जब हो जाता है, जब चैतन्य होता है, क्योंकि उसे आम व्यक्ति नहीं बनना है, उसे आम
जो साधारण बालक है वैसा बालक जन्म नहीं लेना है। तो वो बालक आप जानते होंगे, उस बालक का जन्म होता है 13 महीनों में। 13 महीनों के बाद चैतन्य का जन्म होता है माता के गर्भ से। तो ये बहुत बड़ी बात, विलक्षण बात होती है कि इतने महीनों तक लोग कहते हैं कोई माता अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को धारण कर रखती है, लेकिन चैतन्य को उसकी माता शची देवी ने 13 महीनों तक गर्भ में रखा। उसके बाद उस बच्चे का जन्म होता है। और वो शिशु जो है, क्योंकि अभी भाव की बात हो रही थी, जो चैतन्य भाव, जो राधा भाव, हम देखते हैं कि जो द्वापर का काल था, कृष्ण का वास्तविक काल, वहां कृष्ण का राधा के साथ प्रेम हम देखते हैं, कई घटनाएं, कई लीलाएं हम वहां देखते हैं। लेकिन सीधे सीधे तौर पर राधा के साथ अगर दैहिक रूप में संबंध हम जोड़े तो राधा के साथ उनका दैहिक रूप से, पारिवारिक रूप से वो संबंध नहीं था। लेकिन उसकी परिपूर्णता के लिए जब वो चैतन्य के रूप में आते हैं तो वहां दोनों का सम्मिलित रूप आता है। उसको हम सिर्फ कृष्ण का रूप नहीं मानते हैं, वो राधा कृष्ण का रूप है, राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है, क्योंकि वो प्रेम का रूप है। वहां सिर्फ प्रेम की बात होती है। कृष्ण जब द्वापर में आते हैं वहां युद्ध की बात भी है, प्रेम की बात है, क्योंकि वहां महाभारत को होना है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ इस कलयुग में, कलिकाल में, यहाँ सिर्फ प्रेम की बात है, क्योंकि यहाँ द्वेष फैलता है। इस इलाके में, इस समय में, इस आज 550 साल का जो वक्त था, जो मुगल सल्तनत का काल था, ये सारा का सारा विद्वेष का काल था। उस समय से लेकर कलयुग का आज जो काल हम देखते हैं, ये विद्वेष की पराकाष्ठा है। क्योंकि सहनशीलता की बात अभी लोग कह रहे थे, सहनशीलता तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि अपने अंदर का जो अहंकार है, अहंकार की तिलांजलि जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारे अंदर प्रेम का प्रस्फुटन नहीं होगा। कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यानी जो प्रेम का मार्ग है, प्रेम की जो गली है, इतनी पतली है, इतनी संकीर्ण है कि इसमें दो चीजें नहीं समा सकती। अगर मैं हूं, मैं का मतलब क्या है? मेरा अहंकार। अगर मेरे अंदर मेरा अहंकार है तो वहां हरि नहीं आ सकता, वहां हरि का वास नहीं होगा। और जब मैं अपने मैं को तिरोहित कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, तो मेरे अंदर हरि का वास हो जाता है। उस समय मैं नहीं रहता, वहां वो प्रेम जो है, प्रेम प्रस्फुटित होता है। तो चैतन्य का जो भाव है, चैतन्य का जो आविर्भाव है, वहां वो प्रेम का भाव है। हम चैतन्य को मानते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। इस कौन की जो स्थापना जो होती है प्रभुपाद जी करते हैं, और इस महामंत्र को वो पूरी की पूरी दुनिया में फैलाते हैं प्रभुपाद स्वामी। तो ये 16 शब्द और 32 अक्षरों का ये जो मंत्र है, इस मंत्र के जाप से हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर की जो आसुरी शक्तियां हैं, हमारे अंदर के जो निगेटिव विचार हैं, जो नकारात्मक भाव है, वो सारे के सारे समाप्त होते हैं। जो नृत्य क्या है? नृत्य का एक भाव है, नृत्य मतलब आनंद। हमारे अंदर आनंद नहीं है, विलोप हो गया है। आज किसी को भी देखो, भालो अचन, भालो ही अच्छी, कोई भी प्रसन्नता से कोई जवाब नहीं देता, किसी के अंदर प्रसन्नता नहीं है। यहाँ तक कि जो मॉर्निंग वॉकर्स जो है, वहाँ कई तरह के लाफिंग क्लब्स खुल गए हैं, क्योंकि हंसी हमारे अंदर है ही नहीं, हंसी विलुप्त हो गई है। हंसी कहाँ? हंसी नहीं है। बच्चा जो है, बच्चे में हंसी है, बच्चा क्योंकि विकार नहीं है उसके अंदर। किसी शायर ने कहा है, बच्चे के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चे को छोटे हाथों को, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वे भी हम जैसे हो जाएंगे। क्योंकि हमने 4 किताबें पढ़ ली है। जब हमने 4 किताबें पढ़ ली हैं तो हमारे अंदर क्या हो गया? हमारे अंदर अभिमान हो गया है, ज्ञान का अभिमान हो गया है, पद का अभिमान हो गया है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहां से आया हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये क्या है? ये अभिमान है। ये जो अभिमान है, यही
विनाश का मूल है। जब जितनी दैन्यता होगी, जितनी नम्रता होगी, उतना ही मनुष्य जो है वो पवित्र होगा, एक दूसरे के साथ उसका प्रेम का भाव होगा। आज हमारा ये जो विश्व है, हमारा भारत का, पूरे विश्व का परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं विश्व पटल पर। आज अखबार से, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, अखबार छूते ही हमारे हाथ में खून लग जाता है, रक्त रंजित हो जाता है हमारा अखबार। कहाँ पढ़ते हैं आज अफगानिस्तान में गोलियां चल रही है, तो गोलियां चल रही। कल मैं एक वीडियो आप देखते होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, शादी का माहौल है और शादी के माहौल में लोग बंदूकें लिए हुए और दनादन गोलियां चला रहे हैं, गोलियों का वो भर रहे हैं और गोलियां चलाए जा रहे हैं। कौन सा आनंद है इसमें, क्या है? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं है, मेरा अभिमान है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, इसी में सारा विश्व जो है आज अशांत हो गया है। तो बात हो रही थी ये जो हमारे चैतन्य में जो भाव है, जो दोनों का मिलन है, राधा और कृष्ण का भाव। अगर हम शंकर भगवान के समय की बात देखें, उस समय एक आपने नाम सुना होगा, भृंगी ऋषि की आपने बात सुनी होगी। भृंगी ऋषि बहुत बड़ा तपस्वी था, वो तपस्या कर रहा था, वर्षों तक उसने, सालों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब पूर्णता, जो फाइनल, जिसको कहते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन, आखिरी परीक्षा थी उसकी, तो आखिरी परीक्षा उसने देनी थी, तो शंकर भगवान की परिक्रमा करनी थी उसको 7 बार। तो वो परिक्रमा करता है शंकर भगवान की। एक बार वहीं पर पार्वती भी, उमा भी वहीं पे पास में खड़ी थी, लेकिन भृंगी ऋषि को अपना एग्जामिनेशन पास करना था, तो वो शंकर भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करता है। परिक्रमा करता है तो आप जानते होंगे, नारी में जो है एक, अब मैं द्वेष कहूँ या जो भी कहूँ, या नारी के मन का भाव कहूँ, तो वहाँ उमा जो बैठी हैं, उमा देख रही हैं कि भृंगी ऋषि जो है वो सिर्फ शंकर की चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं और मेरी तरफ वो देख भी नहीं रहे हैं। क्यों? कि भृंगी ऋषि का लक्ष्य एकमात्र था अपनी परीक्षा पास करना। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख को भेदना, उसी तरह भृंगी ऋषि जो है वो सिर्फ और सिर्फ शंकर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा 1 बार 2 बार, तो अब उमा जो है वो बहुत करीब आ जाती है। जब करीब आती है तो भृंगी ऋषि के पार होने की जगह नहीं बचती है, तो भृंगी ऋषि तुरंत एक नेवले का रूप धारण करते हैं और फिर वो परिक्रमा लेते हैं। इसके बाद नाराज होती है उमा, मन ही मन बहुत नाराज होती है। उमा जो है बिल्कुल और करीब आ जाती है। उसके बाद भृंगी ऋषि सर्प का रूप धारण करके फिर चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब उमा शंकर को कहती है कि ये जो है तुम्हारा भक्त है, ये भक्त चारों तरफ परिक्रमा ले रहा है, लेकिन मुझे ये नकार रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मुझे ये देख भी नहीं रहा है। तो शंकर जो है उसने उमा को अपने अंदर समाहित कर लिया। वहीं पर अर्धनारीश्वर का रूप आता है, शंकर और उमा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव सारी। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज जी का प्रवेश होता है, और ऐसे ही समय जब मैं जिक्र कर रहा हूँ अर्धनारीश्वर का, तो वहां उस समय अर्धनारीश्वर के रूप में शंकर पार्वती को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अर्धनारीश्वर का रूप बन जाता है। उसके बाद जब भृंगी ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके बाद उसकी परीक्षा पूरी होती है, उसे मार्क्स मिलते हैं, वो फाइनल एग्जामिनेशन वो पास करता है। यानी शंकर और पार्वती जब अर्धनारीश्वर का रूप होता है तो वहां पर उसकी परीक्षा पूर्ण होती है। वो जो रूप है पुरुष और नारी, वो अलग नहीं है, पुरुष और नारी एक हैं। पुरुष और नारी जब तक एक साथ नहीं है तब तक विश्व का कल्याण नहीं है। पुरुष और नारी को समान अधिकार की बात वहीं से शुरू होती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो थे वो सिर्फ कृष्ण का अवतार नहीं थे, वो कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण उसके अंदर समाहित हैं। चैतन्य ही एक ऐसा महापुरुष है जिसके अंदर अर्धनारीश्वर की शक्तियां, यानी दोनों की दोनों शक्तियां उनके अंदर विराजमान हैं। यानी वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव है। अगर दुनिया में प्रेम है
यहाँ प्रेम अगर आपके अंदर आ गया तो आप समझ लीजिए कि सारी दुनिया में जितने तरह की परेशानियां हैं, चाहे किसी भी काल हो, चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझें, वहाँ किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन प्रेम का भाव नहीं है, अहं का भाव है। इसमें एक बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा होगा कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले वहीं से 60 करोड़। अब इसका अर्थ क्या है? 4 मिले, हम अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं? हरे कृष्णा, सत श्री अकाल, नमस्कार, कुछ भी करते हैं। तो 2 हाथ मेरे 2 हाथ आपके, हम लोग दोनों मिलते हैं तो 2 2 4 मिले 64 खिलते हैं। 64 माने मेरे 32 दांत और आपके 32 दांत। 32 और 32 हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, क्योंकि एक ही भाव है, दोनों में प्रेम का भाव है। 4 मिले 64 खिले। और हमारे कोरोना काल ने तो भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया को सिखा दिया है। ये हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, ये दूर हो गया, कोरोना ने हमें सिखा दिया है। ये भारतीय संस्कृति जो है वही मूल है। तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, 10 अंगुलियां मेरी और 10 अंगुलियां आपकी, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन का मतलब जिसके अंदर अहंग नहीं है, पाप नहीं है, जो पवित्र आत्मा है। हरिजन से हरिजन मिले वहीं से 60 करोड़, यानी हमारे 30 करोड़ रोम कहे जाते हैं। ये जो रोम है ये 30 करोड़ है। 30 करोड़ और आपके 30 करोड़, 30 60 करोड़ विहंस उठते हैं, खिल उठते हैं, खिलखिला उठते हैं, विहंस उठते हैं। तो जब प्यार में भरा हुआ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उस समय रोम रोम हमारा पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तो यही जो भाव है चैतन्य का, यही भाव है। सबार ऊपरे मानुष सत्य तहार ऊपरे ना। तो सबसे ऊंचे मनुष्य सत्य है। मनुष्य का मतलब क्या? मनुष्यत्व। मनुष्य का मतलब ये हाड़ मांस का पुतला नहीं। छित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों का है, वो तो ठीक है, ये भौतिक शरीर है। लेकिन भौतिक शरीर जब हमारे अंदर प्रेम नहीं है अगर, तो भौतिक शरीर के अंदर राम नहीं, वहां रावण आ जाता है, वहां रावण का वास हो जाता है, अत्याचारी का वास हो जाता है, राक्षस का वास हो जाता है। आज अपने बंगला में कहावत है, क्या कहते हैं कि जय जय लंका से रावण। हम अगर चुनकर भेजते हैं किसी को भी, राजनेता को, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की हो, चाहे कहीं की भी हो, चाहे किसी भी जगह भेजते हैं, तो वो आदमी कहाँ जाता है? कोई आकाश से नहीं आता है, वो हमारा ही भाई है, हमारे बीच का व्यक्ति है, हमने उसको चुनकर भेजा है। लेकिन होता क्या है? जय जय लंका से रावण। जब वो वहां जाता है, वहां की उस कुर्सी पर बैठता है, तो उसके अंदर मनुष्यत्व नहीं, उसके अंदर रावणत्व पैदा हो जाता है। रावण उसके अंदर, राक्षसी प्रवृत्तियां उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो हमें उस समय वो आदमी नहीं, उस समय वो कीड़े मकोड़े समझ लेता है कि ये क्या है, क्योंकि हम तो आकाश में उड़ रहे हैं, हमारे जैसा ये नहीं है। चाहे इसने ही हमें बनाया है, चुना इसने है, लेकिन उस समय वो ये बात भूल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय होते हैं, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। और जन्म मैंने जैसा कि कहा कि 13 महीनों में इनका जन्म होता है। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही पता लग जाते हैं। जो सपूत होता है, जब वो पालने में होता है, उस समय उसकी जो हरकतें हैं, उस समय जो उसके क्रियाकलाप हैं, उसके क्रियाकलाप ही ऐसे होते हैं कि हमें पता लग जाता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, बड़ा होकर कुछ खास बनेगा। चैतन्य भी जब जन्म लेते हैं तो उस समय आप जानते हैं चंद्र ग्रहण था। उस समय भी लोगों ने कहा, कई लोगों को जब दिखाया वो बालक, तो बताया कि ये बालक बड़ा होकर कुछ खास होगा, कुछ विशेष होगा। कुछ घटनाएं आप जानते होंगे कि जब उस समय जो पंडित लोग आया करते थे, प्रभुपाद स्वामी भी जब अमेरिका गए तो अपने साथ वो बनाने का सामान वगैरह लेकर गए थे। तो उस समय खास तौर से ये घटनाएं थी
कि हम ब्राह्मण देवता को जब अपने घर बुलाते थे कि हमारे घर आइए आप भोजन करें, तो निमाई जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के माता पिता थे, उनके यहाँ भी जब एक ब्राह्मण आए तो उनको कहा कि भाई आए हमारे यहाँ भोजन करें आप। तो भोजन का तरीका क्या था कि रसोई घर को साफ स्वच्छ कर उस ब्राह्मण को दे दिया जाता था, कच्चा सामान दे दिया, जिसको सीधा भी कहते हैं। सीधा सीधा का मतलब कच्चा चावल दाल वगैरह वगैरह जो भी उसको दे दिया जाता था। वो खुद खाना बनाते थे और खुद बैठकर खाते थे, पहले भोग लगाते थे फिर खाते थे। ये परंपरा बहुत सालों तक ये परंपरा रही और कई कई अंचलों में अभी भी कुछ पंडित लोग इसको मेंटेन करते हैं। तो वहां जब वो पंडित को दे दिया गया, खाना वाना उसने बनाया, मेहनत कर से खाना बनाया, अब वो भोग लगा रहा कि भोग करें, आंख बंद भोग लगा रहा। तो भोग लगे, उसके बाद वो खाए। जैसे उसने आंख खोली तब तक जो बालक चैतन्य महाप्रभु थे बाल रूप में, वो आते हैं और उसको खाने लगते हैं। वहां बैठकर उस पत्तल से वो खाना खाने लगते हैं। इसकी आंख खुलती तो आंख बबूला हो जाता है पंडित कि बच्चे ने तो झूठा कर दिया इसको खाना। बहुत गुस्सा होता है। तो बाल रूप में जो थे वो भोजन करते हैं और ये बड़ा गुस्से हो जाता है। तो माता पिता भी बड़े रुष्ट होते हैं और इसको चैतन्य को ले जाते हैं, बांध देते हैं, अलग दूर ले जाते हैं। उसको कहते हैं कि क्षमा करें हमें, आप एक बार फिर खाना बना, फिर उनको दिया जाता है। दोबारा खाना वो बनाता है, लेकिन दोबारा क्या होता है, उसको दूर कहीं बांध कर रखा जाता है। लेकिन फिर चूंकि वो बालक तो सामान्य बालक नहीं था, वो बालक फिर आता है चैतन्य और फिर उस खाने को जूठा करता है। लेकिन वो उस पंडित को जब तीसरी बार ये लेट जाते हैं, इसके माता पिता जगन्नाथ और शची के भी लेट जाते हैं कि हम लोगों से भूल हुई, हमारे बच्चे से बहुत गलती हुई है, आप खाना बनाएं, इसको हम लोग किसी भी हालत में नहीं आने देंगे। तब तीसरी बार जो है वो खुद चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, ईश्वर भगवान प्रकट होते हैं। उसको कहते हैं भाई कि 2 बार तो मैंने तुम्हारा भोजन मैंने ग्रहण कर चुका हूं मैं। तो वहां आविर्भाव होता है, वहां पता लगता है कि ये बालक सामान्य बालक नहीं है, ये ईश्वर का रूप है, ये कृष्ण का रूप है। तो बाल रूप जो है ये बचपन से ही पता लग जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, वहीं पता लगता है कि ईश्वर का रूप है, ईश्वरी रूप है। तो वहाँ चैतन्य को बचपन से ही चैतन्य को वहीं से पता चला। उसके बाद की घटनाएं तो आपको पता है, किस तरह वो गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करते हैं, एक पत्नी की मृत्यु होती है, फिर दूसरा विवाह होता है। ये तमाम बातें आप सभी जानते हैं, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। वो वृंदावन जो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, वृंदावन को लोग भूल चुके थे, उसकी जो लीला भूमि थी कृष्ण की, वहाँ वो जाते हैं और जंगल से जहाँ से भी जाते हैं वो नाचते हुए कीर्तन करते हुए जाते हैं। उनकी मंडली जो उनकी संगत से क्या असर होता है, जब हम इस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है। क्योंकि ये जो वातावरण है, हम किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं भी धूप बत्ती क्यों जलाते हैं? वो पवित्रता का भाव लाने के लिए। अभी जब महाराज जी यहाँ आते हैं तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है, पवित्रता का भाव। हम प्रणाम करते हैं, हमारे अंदर नम्रता का भाव होता है। तो ये भाव है, ये सबसे बड़ी चीज है। और जब वो जंगल से जा रहे हैं वृंदावन या कई जगह वो घूमते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ तक कि मनुष्य पर सिर्फ प्रभाव नहीं पड़ता उनका। वहाँ जंगल में जो हरिण है, जो शेर हैं, जो बाघ हैं, जो भालू हैं, वो भी नाचने लगते हैं, नाचते नाचते वो भी जा रहे हैं। तो उनका जो आभा मंडल आप देखा होगा, कोई भी जो देवता देवी का चित्र हम देखते हैं कि चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, एक प्रकाश फैलता है। तो उस आभा मंडल के प्रभाव से जो पशु पक्षी है वो भी नृत्य करते हुए जाते हैं। वहाँ पर आपने देखा हो वृंदावन में, उसके बाद इन्होंने अपने 6 लोगों को बाद में ये वहाँ भेजते हैं और वहाँ वो 7 ऋषि जैसे होते हैं, वो 7 तरह के वो मंदिर चैतन्य महाप्रभु बनवाते हैं वृंदावन में, उसको जागृत करते हैं। और आखिरी बार वो फिर पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जब वो दर्शन करते हैं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, वो भी इन्हीं का रूप है। लेकिन वहाँ दर्शन करके इतने भाव विभोर होते हैं, इतना नृत्य करने लगते हैं, नृत्य करते करते वो बेहोश हो जाते हैं। तो वहीं से ये पता लगता है, वहाँ के राजा को भी पता लगता है, वहाँ इनके मुरीद बन जाते हैं। तो एक ही समय, मैंने जो बताया कि एक ही कालखंड में गुरु नानक देव भी होते हैं और वे भी पुरी जाते हैं। उस समय पुरी वो भी जाते हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा ऐसी थी, उसको लोग मुसलमान फकीर समझते हैं। और पुरी के मंदिर
में नियम था, आज भी है, कि वहाँ हिंदू ही प्रवेश कर सकता है। आप जानते होंगे सभी कि पुरी के मंदिर में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो गुरु नानक देव जी को जब उन्होंने समझा कि ये कोई मुस्लिम फकीर होगा, उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाता, वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं और वहाँ वो आरती करते हैं। वहाँ कौन सी आरती का? गगन में था रविचंद्र दीपक बने तार का, मंडला जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चबरो करे। ये जो आरती करते हैं, तो उस आरती के बाद वहाँ के राजा को स्वप्न आता है रात में कि आप जो जगन्नाथपुरी की ये जो आरती कर रहे हैं, उस समय हम लोग वहाँ नहीं होते हैं, हम लोग समुद्र के किनारे जो आरती हो रही है, हम लोग बलभद्र और हम सब लोग वहीं पे होते हैं। तो वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ देखे कि आरती हो रही है, वहाँ कुछ छायाएं घूम रही हैं। यानी जो गुरु नानक का भी जो रूप था उस समय, वो आरती वो करते हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसका अनुवाद किया है बाकायदा, ये विश्व भारती से ये प्रकाशित है। गगन थाल रविचंद्र दीपक बने तार का, मंडला जनक मोती, इसका हूबहू अनुवाद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी किया। तो बातें तो देखिए कई बातें हैं, कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कथा तो अनंत है, आप कितनी कथा कीजिएगा, कथाओं का कोई सीमा नहीं है। और आज जो स्थितियां हैं, जो बात हमारे बता रहे थे कि चांद गाजी की बात, जो असहिष्णुता वाली बात, नम्रता के साथ लोग जाते हैं। उस समय बाबर को भी कहता है कि बाबर तू जाबर है, गुरु नानक देव जी कहते हैं। तो वो ये सारा एक कालखंड के जो लोग, जितने जो हमारे संत पुरुष होते हैं, उनकी भावनाएं एक ही तरह की होती हैं। तो मैं बात की समाप्ति करूंगा, क्योंकि स्लिप भी आई है और स्वाभाविक बात है, जो आयोजक होता है, आयोजक की जिम्मेदारी होती है कि वो सचेत कर दे उसे। और मैं आखिरी बार एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा कि हर एक फूल का मजहब खुशबू हो जाए, हर एक फूल का मजहब खुशबू हो जाए, खुशबू ही ईमान बना दे या अल्लाह, खुशबू ही ईमान बना दे या अल्लाह, जात पात ना छूत छात का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। धन्यवाद। Thanks to Sri Rawal Pushpji. We should remember with utmost respect what Sri Pushpji said about the life and precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Guru Nanak. And while I am listening his lecture, as few words came in my mind from the Guru Granth Sahib, Ek Tu Hi Nirankar, এবং উনি যা বললেন, সেই একই সেই বৈচিত্র্য এবং পরিধানের বিবিধ পরিধান এবং বৈচিত্র্যের মাঝে সেই একতার সুর, তা তিনি বললেন। ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন অমিস ডিভাইন গ্রেস বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রী শ্রীমদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, Acharya and President of Gauriya Mission. I would like to request Gaurasundar Das Brahmachari to felicitate Gurudev with badges and garlands, please. I would like to request Gurudev to grace the chair as the president of this session, and I would like to request our most respected and beloved Gurudev to render his benedictory address for us. Thank you. Bande aham Sri Guru Sri Jutopada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanitangscha Mancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhaivacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo परम आराध्यतम गौड़ीय गुरुवर्गेर पाद पद्मे कृपा भिक्षा करे गौड़ीय मिशनेर द्वारा आयोजित श्री चैतन्य महाप्रभु म्यूजियामेर प्रेक्षागृहे म्यूजियामेर
2 বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা মহাপ্রভুর মহিমা, মহাপ্রভুর প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে কিছু কথা শ্রবণ করছিলাম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি এই ভৌম প্রপঞ্চে অবতরণ করতে গিয়ে যিনি এই পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাকেই উপলক্ষ করে এসেছেন, যিনি তৎকালীন বিদ্যার কেন্দ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিখ্যাত বিদ্যা কেন্দ্র নবদ্বীপ ধামকে কেন্দ্র করে এসেছেন, যিনি নিজ ছাত্র জীবনে অধ্যাপনা কালে বিদ্যার সমস্ত গৌরবের মধ্যেও বিদ্যার অহংকারকে চূর্ণ করে প্রেমের ভাবনা, আধ্যাত্মিক চেতনাকেই সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। আজ তার কথা আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল হওয়া উচিত। কেবল বঙ্গবাসীর জন্য নয়, কেবল ভারতবাসীর জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বে শ্রী চৈতন্যদেবের বাণী, তার শিক্ষা, তার দর্শন প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক দেশের পক্ষে হিতকারী হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। শ্রী চৈতন্যদেব তার বাণী বা তার শিক্ষার দ্বারা তিনি আজকের যে ফেক সাম্যবাদ, সাম্যবাদের নাম করে বিভেদবাদ, সাম্যবাদের অন্তরালে বিভেদবাদ মানুষকে অশান্ত করে তুলছে। চৈতন্যদেবের সাম্যবাদ, চৈতন্যদেবের প্রত্যেক জীব ঈশ্বরের অংশ, আত্মা, সোল, চামড়ার ভেদ, স্বভাবের ভেদ, লিঙ্গের ভেদ, জাতির ভেদ, সবের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে যে সিদ্ধান্তে তিনি সাম্যবাদ এনেছিলেন, আজকে ওই সাম্যবাদ দরকার। কতটা স্প্রেড করবে আমাদের দ্বারা বা অন্য কারোর দ্বারা, সেটা মূল বিষয় নয়। বিষয় আমরা চৈতন্যদেবের ফিলোজফির বিউটি, সৌন্দর্য, তার দর্শনের সৌন্দর্য আমরা যতটুকু অনুভব করব, ততটুকু আমাদের জীবনে আনন্দ বা শান্তি নেমে আসবে। চৈতন্যদেব এই কাম প্রেমের সূক্ষ্মতম তফাৎ প্রদর্শন করে তিনি বাস্তব প্রেম, জীবপ্রেম বা দেশপ্রেম সব কিছুকে ক্রোড়ীভূত করে একটা প্রেম, ঈশ্বর প্রেম, ভগবত প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম, যে প্রেমের প্রকাশ তিনি এনেছিলেন, যে প্রেমের প্রকাশ আজও কোনো কোনো চৈতন্যদেবের ফলোয়ার মধ্যে দেখা যায়, যে প্রেমের প্রকাশ গৌড়ীয় ফিলোজফির মধ্যে দিয়ে আমরা কেউ কেউ তার আভাস জানতে পারি, সেই প্রেম, সেই প্রেমবান পুরুষ, সেই প্রেমের প্রচারকারী পুরুষ চৈতন্যদেব প্রত্যেক জীবে জীবে যত স্প্রেড করবে চৈতন্যদেবের শিক্ষা, চৈতন্যদেবের ভাবনা, চৈতন্যদেবের বিচারধারা, গ্রামে গঞ্জে শহরে
শহরতলিতে, দেশে বিদেশে, এই ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে যত ছড়িয়ে পড়বে তত জীবের মূল্যবোধ, মানবের মূল্যবোধ, ভগবানের, সর্বোপরি ভগবানের মূল্যবোধ আমাদের কাছে ধরা পড়বে। আমরা শান্তিতে থাকতে পারব। মঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো। Pranam to Sri Gurudev. Now I would like to request to our most respected and beloved Gurudev to offer a memento to our respected guest lecturer, Dr. Maqbul Islam. And Sri Rahul Pushpji. Thank you, Gurudev. Just before ending the program, 2-3 more words about the museum. With the grace of Guru and Gauranga, আমাদের মিউজিয়াম আমরা আজকে যে 2 বছর অতিক্রান্ত করেছি এবং অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে মহাপ্রভুর যে ভাবধারা বা গুরুদেবের আশীর্বাদ এবং অন্যান্য মহাচান্দের আশীর্বাদে আমরা মানুষের মধ্যে সম্প্রচারিত করতে পারছি। এর জন্য সকলের সামনে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের মিউজিয়াম ইনচার্জ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজকে, গৌরসুন্দর প্রভু, সুরবন্ধু প্রভু এবং all the other members of Gaurav Mission. Now I would like to request Sripad Bhaktinishta Madhusudan Maharaj to render the vote of thanks. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই সভার আয়োজন, যে সভার বিষয়বস্তু বর্তমান আধুনিক সমাজে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভূমিকা, আমরা এই বিষয়ের উপরে আমাদের বক্তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত বক্তব্য শুনলাম, এটা আমাদের জীবনের পথের সঙ্গী হোক, কারণ আমরা সমাজের অঙ্গ এবং আমাদের জীবনও এই বাণীর দ্বারা সমৃদ্ধ হোক, এই প্রার্থনা। সর্বপ্রথমে সভার সভাপতি রূপে পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুদেব ওম বিষ্ণুবাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের রাধুল চরণে অসংখ্য দণ্ডবাদ প্রণাম জ্ঞাপন করে তার কৃপা ভিক্ষা করছি। তাঁরই মহতি উদ্যোগে, তার অশেষ অক্লান্ত পরিশ্রমে এই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম আজকে আমাদের সামনে প্রকাশিত, যা দ্বিতীয় বর্ষ পার করল। সর্বপ্রথমে তার কাছে প্রার্থনা করি, কৃপা ভিক্ষা করি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই মহাপ্রভু মিউজিয়ামের প্রকাশ এই জগতের বুকে, সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য যারা যারা এখানে কর্মরত রয়েছেন সকলের প্রতি তিনি আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, যাতে আমরা শুদ্ধভাবে সেই ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। পরবর্তী এই সভার মধ্যে রয়েছেন ডক্টর শেখ মকবুল ইসলাম, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি, সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল কলেজ এবং ডাইরেক্টর অফ শ্রী জগন্নাথ রিসার্চ সেন্টার, যিনি তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভুর যে শিক্ষা বা ধর্ম প্রচারের একটা মূল কথা, আত্মদর্শন। অনেকেই এই সংসারে ধর্ম প্রচার করেন, কিন্তু সেই সমস্ত ধর্ম প্রচারে কোথাও দেহগত বিচার, কোথাও মনোগত বিচার বা কোথাও শাস্ত্রের বিচার থাকলেও সেটা আংশিক বিচার, একদেশিক বিচার নিয়ে ধর্ম প্রচার করেন। মহাপ্রভু সব তত্ত্বকে সমন্বয় করে এবং আত্মদর্শনে স্থিত হয়ে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে প্রচার প্রসার করেছিলেন, সেই ভাবযুক্ত হয়ে মকবুল ইসলাম তিনি আমাদের সামনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মিশনের সঙ্গে জড়িত, পরিচিত। আমি তাকে মিশনের পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তারপরে শ্রী রাহুল পুষ্পজি, এমিনেন্ট জার্নালিস্ট অ্যান্ড পোয়েট, মেম্বার অফ হিন্দি একাডেমি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং এডিটর অফ বৈচারিক ম্যাগাজিন, যিনি হিন্দি ভাষায় আমাদের সামনে
মহাপ্রভুর কিছু লীলার মধ্যে দিয়ে কিছুটা সাম্যবাদের কথা এবং মহাপ্রভুর ভাবধারার কথা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আমি তাকেও মিশনের পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আশা করি তিনি প্রথমবার এখানে এসেছেন, এরপরেও আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং এই সমস্ত আমাদের মহতি কার্যের অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবং সবশেষে আমাদের মিশনের সন্ন্যাসী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক ঋষিকেশ মহারাজ, যিনি গৌড়ীয় মিশন বুক ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ, তিনিও এই যে বিষয় আমাদের বর্তমান সমাজে মহাপ্রভুর কি ভূমিকা, বর্তমান সমাজের সমস্ত দিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে প্রভাব বা যে ভূমিকা, তার উপরে তিনি আলোকপাত করেছেন। আমি তার চরণে দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করি এবং তিনিও আমাদের এই যে এত বড় একটা কর্মকাণ্ডের একজন মূল পুরোধা বলে তিনি যে কাজকর্ম করে চলেছেন আমাদের সাথে, তার এই সব কৃপা প্রার্থনা করি যাতে আমরা তাকে নিয়ে এইভাবে সঙ্গে এগোতে পারি। সবশেষে এই মিউজিয়াম পরিচালনা কার্যে অথবা মিউজিয়ামের উন্নতিকল্পে মঠের বৈষ্ণবগণ এবং মঠের বাইরের অনেকেই রয়েছেন যারা ভক্ত এবং যারা আমাদের ফলোয়ার্স অনুযায়ী, আমি সকলকে মিশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ